honorable dignitaries, it's so glad to be among us the august and vibrant gathering over here. We all know why we are staying here, because we are because we are celebrating Women's Day, International Women's Day. अब सब बोलते हैं, मतलब कुछ लोग बेचारे ऑफेंड हो जाते हैं कि विमेंस डे, जैसे भी मैम ने कहा कि मेंस डे नहीं होता है. आई बिलीव एवरी डे इज एवरीवन्स डे, है ना? डू यू बिलीव? Every day is everyone's day. Every day is a woman's day. Every day is a man's day. Every day is a brother's day. Every day is a father's day. Every day is a mother's day. Similarly, every day is a son's day, daughter's day. हर कोई दिन हर किसी का होता है. Basically, हर कोई दिन एक ह्यूमन्स डे होता है. Since उसमें lapses रहे हैं, तो UN has to organize a day to celebrate this day. चूंकि इसमें वल्नरेबिलिटी बढ़ गई, विमेन वल्नरेबल ज्यादा रहे. वी रिसेंटली केम अक्रॉस अ स्टोरी, एक टूरिस्ट के साथ क्या हो गया, ब्राजीलियन टूरिस्ट के साथ. उसका मतलब ये नहीं कि हमारे इंडिया में टूरिस्ट का वेलकम नहीं किया जाता है. वी आर नोन फॉर द हॉस्पिटैलिटी. यू रिसेंटली सॉ हमारे ही नेबरहुड में हंदवारा में हस्बैंड किल्ड हिज वाइफ. और कितना मतलब what a story that was when he was sharpening his eggs. जो मेरे साथ यहाँ पे हंदवारा के लोग हैं, like some of the journalist brothers are with me, they know it. जब वो sharpen कर रहे थे eggs, तो his wife asked him, why are you doing this? Are you going to kill me? उसने कहा नहीं, I am not going to kill you. फिर गया है अपनी daughters को बोला, first I'll kill her, then I'll kill both of you. And he did it. Why? मैं ये भी नहीं बोलूंगी, I cannot be judgmental because we do not know the other side of the story. कुछ कमियां हम में भी रहती हैं. हम हमेशा encouragement and empowerment की बात करते हैं. क्या हमारे दीन इस्लाम में women को empowerment की जरूरत है? Please be honest. क्या हमारे पास सबसे बड़ी बिजनेस वूमन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहीं है? क्या हमारे पास जन्नत की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा नहीं है? मैं जैसे कहते हैं ना, behind every successful man there is a woman. Behind me there is my husband, my kids. I'm so proudly standing here. I am so successfully standing in the field of volunteer social service, जहाँ पे कोई किसी को लड़की को नहीं जाने देगा. क्या थोड़ी सैलरी मिलेगी? My husband lets me go because he knows I belong to the academic field, that is social work, and I have to do that only. I'm meant for that only. I belong to a well-earning family. My mother-in-law has been my inspiration in terms of morality. She has been an educationist and she is so moral and down to earth. She is my inspiration. Like all of you, I have not been so privileged because I had lost my mother long back when I was in second primary. I'm sorry, this is the first time I'm publicly speaking about my personal thing. I never have let it come into public. वैसे लोग जानते हैं. Then I was not so privileged कि मैं स्कूल से आ जाऊं. There would be my breakfast, my snacks, my lunch ready for me. I had to go back to my domestic chores. But I never ceased to anything. That is what inspires me for me. I never ceased to what people said. I never ceased to how people wanted to knock me down. I would proudly like to tell you all that I have a record service of volunteer social service of 13 years towards society. जिसके लिए I was felicitated by Honorable LG of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha sir, in 2021 with Young Achievers Award, a Changemaker Award in SKICC. And then recently I got felicitated at Srinagar in Institute of Advanced Studies by Aryans Group of College with Laldat Excellence Award. And it did not come overnight. The purpose to mention this here is success does not have a shortcut. And success is not money. आपने बहुत सारी चीजें सुनी दोनों मैम से, पूजा मैम से भी एंड एसपी मैम से भी. मैं एसपी मैम के इसमें जो इन्होंने बोला ना, खुश रहना चाहिए एंड मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो हम एक रेस में है, वी वांट एन ओवरनाइट सक्सेस. हर कोई हम में से
हम मोरालिटी से ग्राउंडेड नहीं है, वी हैव डिटैच्ड फ्रॉम ह्यूमैनिटी। दैट इज द रीजन मुझ जैसी लड़की को निकलना पड़ता है सोसाइटी में सोशल सर्विस करने के लिए। क्या हमें सोशल सर्विस करने की जरूरत है? व्हेन वी आर ह्यूमंस, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस एंड इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी। हर किसी को इस्लाम में एडवोकेट किया गया है खिदमत खल्क को, तो हमें तब पड़ना चाहिए था जब कोई कैलेमिटी, कैटस्ट्रॉफ, कुछ ऐसा वॉर है, कुछ है, तब जरूरत पड़ती है बड़े पैमाने पे करने की। अदरवाइज इट वाज नॉट नीडेड कि मैं जाऊं। गांव में मोनबल एक इलाका है, पता नहीं हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी नोइंग अबाउट दैट। मोनबल एक इलाका है, शायद वो विलगाम साइड से आता है, तो मैं गई हूँ वहां, बट एग्जैक्टली नहीं पता वो विलगाम के साथ आता है कि किस इलाके के साथ। हाँ, तो वहां पे मुझे इंटीमेट हाइजीन पे बात करनी पड़ेगी। मैं इस पर्पज से गई, और वहां पे उनको फर्स्ट एड भी अवेलेबल नहीं है। एंड दे आर वोटिंग फॉर द पीपल, जो जब उनको चुनने पड़ते हैं, वोट के बाद उनको कोई देखने भी नहीं जाता है। दैट इज द रीजन हम इस डिस्ट्रक्शन में है, इस क्योस में है। अभी विमेन्स डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? वाई डू वी सेलिब्रेट विमेन्स डे? If every day is a woman's day, then why do we celebrate it? Why do we choose a specific day for celebration of Women's Day? However, I do not deny the fact and discourage the fact कि हमारी ताकत हमारे में है. But why do we celebrate it? Because यहाँ पे अभी भी ऐसे एलिमेंट्स है हमारी सोसाइटी में जिनको हमें स्पून फीड करना पड़ता है. No, this is a gender equally as you are, and you need to be respectful towards her. फेलिसिटेशंस के लिए कोई भी दिन चुना जा सकता है, एंड फेलिसिटेशन आपको अपने टैलेंट के बेसिस पे कहीं पे भी मिलता है. बट विमेन्स डे पे हमें क्यों उजागर करना पड़ता है? व्हाई इज देयर अ विमेन्स डे, व्हाई इज देयर नॉट अ मेंस डे? जैसे मैं आज उन मैन को जवाब देना चाहती हूँ, आई रिस्पेक्ट यू ऑल. जैसा आप बोलते हो मुझे, आप लोग विमेन्स डे सेलिब्रेट करते हो, मेंस डे. हाउएवर आई हैव दिस इन माइंड, आई विल बी डूइंग समथिंग फॉर मेन. बट मेंस डे इसीलिए सेलिब्रेट नहीं किया जाता है बिकॉज यू आर नॉट अ माइनॉरिटी. आप वल्नरेबल नहीं हो, आप माइनॉरिटी नहीं हो. देयर आर नो वॉल्व्स अराउंड इन द सोसाइटी टू मॉल यू, टू अटैक ऑन यू. देयर इज नो मैन जिसको रात में फेसबुक पे, मैसेंजर पे कॉल आएगा किसी मैन का. बट वीमेन आर देयर. आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव माई हस्बैंड हु इज अंडरस्टैंडिंग, वरना मुझे रात में भी मैसेंजर में कॉल्स आते हैं. फिर माई सन इज ओनली 7 years old, ही टेक्स अप द कॉल. क्या आपको तमीज नहीं है? फेसबुक चलाना नहीं आता है? मम्मा को कॉल करते हो. These are the reasons why do we need to aware people about things. Otherwise government is not, or administration and government is not leaving any stone unturned. G20 हाल ही में हुआ, W20 उसका सपोर्ट था, पार्ट था, एंड W20 का मकसद ही था to make women equally able to participate and accelerate the economic development of the nation. GDP को बढ़ाने में women का भी हाथ हो, and it's happening. It's of course happening. There are women outshining the field, but there is still empowerment needed. कल रमजान आ रहा है, कितने मर्द होंगे जो बोलेंगे हमारी माँ भी इबादत करेगी, चलो हम इनका हाथ बटाते हैं, हम इनको ज्यादा काम नहीं. हमें सहरी का टाइम होता है, मतलब स्ट्रेसफुल टाइम होता है अफ्तारी का. अफ्तारी के लिए हमें डिफरेंट तैयारी करनी होती है, हम आफ्टरनून से ही लगे रहते हैं. अफ्तारी कितने मैन बैठते हैं वहां पे, चलो मामा आप चाहे अपनी बहन को बोलेंगे जाओ आप कुरान शरीफ पढ़ लो तब तक, या इबादत कर लो. अगर चलो आपकी माँ एजुकेटेड, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, बट एटलीस्ट वो तस्बीह तो पढ़ सकते, उसका भी हक बनता है. ये सिर्फ उसकी ड्यूटी नहीं है. और इस्लाम में सेल्फ हेल्प सुन्नत है, इसको समझे. इफ दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड, 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर डन. अगर आप मॉरलिटी के साथ ग्राउंडेड हो, अगर आपको किसी को आपने देखा, इसके पास मैंने देखी इसके पास सोने की अंगूठी है और मेरे पास नहीं, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास नहीं है, तो आप उसके लिए किसी भी हद तक जाओगे. मटेरियलिज्म इज नथिंग. जस्ट बी डीप रूटेड, बी ग्राउंडेड एंड फोकस ऑन योर एस्पिरेशंस एंड ऑन योर गोल्स. उसके लिए मेहनत करो, किसी का फेवर मत मांगो. You will carve out your way. मैंने बनाया है अपना रास्ता, you will also do it. और मैंने एक बुक लिखी है फैजान सर के लिए, मैं बोलना चाहूंगी, मे बी दे फील प्राउड.
तो द मेलनकॉलिक टेल्स ऑफ ए हॉक ऑर्फन उसका नाम है, विच इज अ स्टोरी ऑफ अ मदरलेस चाइल्ड, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ मदरलेस चाइल्ड, तो मेरा ज्यादा कंसर्न, आई एम मोर इंक्लाइंड टू सोशल कॉजेज, मैं उसी पे ज्यादा लिखती हूँ, तो दैट इज अगेन अ मदरलेस चाइल्ड के बारे में है। आई वुड लव इफ यू रीड दैट सर। तो वो आप लोग पढ़िए, इसलिए नहीं कि रिफत मैम अपनी बुक का प्रमोशन करते हैं, आई नेवर डिड दैट। मैं यहाँ आई थिंक 3 बार आ गई, अब तीसरी बार हम मुखातिब हो रहे हैं, बैक टू बैक आ गई, बट आई नेवर डिड दैट। मैं इसलिए बोलूंगी बिकॉज आप खुद के साथ रेजोनेट कर पाओगे, यू विल नो योर सेल्फ, यू विल बी एम्पथेटिक, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन एक चीज का हमेशा मैं बोलूंगी ध्यान रखना कि कभी अपने असूलों को लांघो मत। नो टू ड्रॉ द पर्सनल लाइंस, गो वेरेवर यू वांट टू, डोंट लेट एनीवन क्लिप योर विंग्स एंड डोंट बी अ पर्सन कि आपकी वजह से और किसी की विंग्स क्लिप हो जाए। ये 2 चीजें इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर है। बी अ पर्सन दैट फ्लाइज सो हाई कि दूसरा पेरेंट बोलता है ये जो लड़की है ना, इखलाकी तौर पे, तालीमी तौर पे, प्रोग्रेस के तौर पे, जिस भी हिसाब से मेरी भी ऐसी बननी चाहिए, वो मिसाल कायम करो। ऐसी मिसाल नहीं कि दूसरा बाप बोले ना ना ये फील्ड, इस फील्ड में जाके आप खराब हो जाते हो, वो देखो उस लड़की की तरफ। नो, वोमन कैन नेवर बी अ मैन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। वोमन कैन नेवर बी अ मैन, वी आर वेरी मच ब्लेस्ड एज वी आर। अरे हम औरतें हैं, वी आर चोजन फॉर द थिंग्स जिसमें अल्लाह ताला को आदमी पे भरोसा नहीं था। वी कैन रिप्रोड्यूस एंड वी कैन गिव बर्थ टू बेबीज, जिससे इंसानियत आगे बढ़ती है। मैन कुड नॉट डू दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी मच हैप्पी एंड प्राउड फॉर दैट। तो इसमें वी कैन नॉट बी मैन, बट वी आर ए जेंडर एंड वी आर ह्यूमंस। बस हमें ह्यूमन समझो, जैसे आप में कैपेबिलिटीज है ना, जैसे आप समझते हो, जैसे आप सोचते हो, जैसे आप चलते हो, वी आर ऑल्सो एबल टू डू दैट। लेट अस डू दैट। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू कंक्लूड विथ सम लाइन्स दैट आई हैव रिटन। पसंद आए तो बता दें।